Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 2. We are going to learn Unit 8. Its title is Road Safety Rules. First, we'll discuss the SLO-based lecture division for this unit. Then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we learn words showing possession, and we'll cover the SLO to identify and use words showing possession. For example, my, your, his, her, our, their, and its. Lecture 2, we'll learn about punctuation, comma, and we'll cover the SLO to recognize and add a comma for a series of items in a sentence. And after yes or no in short form dialogues, for example, yes, thank you, etc. Lecture 3, under the title of language focus, we learn ending sound of S as S, Z, or is. And we'll cover the SLO to differentiate between words ending with S, Z, and is sound. Lecture 4, we learn about the syllable of a word, and we'll cover the SLO to recognize and pronounce simple words with one or more syllables. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to use textbook pictures to aid comprehension and development of vocabulary, and familiarize themselves with rhythm and stress. Lecture 6 will continue and complete the reading and understanding of the text, and will cover the SLO to use textbook pictures to aid comprehension and development of vocabulary. Lecture 7, under the title of Oral Communication Skills, we learn how to seek permission, and will cover the SLO to articulate, to recognize, and use formulaic expressions to seek permission to do something. Lecture 8A, under the writing skill, we learn to write sentences, and we'll cover the SLO to construct a simple sentence of 3 or 4 to 5 or 6 words using correct capitalization, punctuation, and spelling. Lecture 8B, again under the title of writing skill, we'll recognize use of question words, and we'll cover the SLO to brainstorm to gather ideas for various activities or tasks. Recognize the function of selected question words, for example, what, when, to write answers to simple questions. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of this unit is Road Safety Rules. Yes, my dear students, बेटा रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर हिफाजती असूल, और ये किस लिए होते हैं? ताकि हम एक्सीडेंट्स वगैरह से बच सकें और रोड के ऊपर हम महफूज तरीके से चल सकें, ठीक है। और बेटा जो रोड्स के ऊपर रूल्स होते हैं, जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक साइंस हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए लाजिम है, और वो हमारी ही हिफाजत के लिए होते हैं, राइट। अब देखते हैं इस टेक्स्ट में, इस यूनिट में इस बात को किस तरह डिस्कस किया गया है। हमाद एंड किरण आर सिबलिंग्स, ये दो बहन भाई हैं, भाई का नाम है हमाद और बहन का नाम है किरण। They are walking on the footpath, वो फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं। When they cross the road, जब उन्होंने रोड क्रॉस की, सड़क पार की, they see a car accident, तो वो एक कार का हादसा देखते हैं। किरण gets worried, अब वो जो बच्ची है किरण, वो परेशान हो जाती है। She turns to her brother, वो अपने भाई की तरफ मुड़ती है,
और कहती है, अब किरण अपने भाई से क्या कह रही है, ब्रदर व्हाई डू एक्सीडेंट्स हैपन्स, ये हादसा जो है ये क्यों होते हैं। हमाद, भाई जो कि बड़ा है वो अपनी छोटी बहन को बता रहा है, when people drive carelessly, जब लोग बेहतियाती से गाड़ी चलाते हैं, it leads to accidents, तो फिर हादसात होते हैं। Accidents happen because people do not follow the road safety rules, हादसात इसलिए होते हैं कि लोग सड़क के ऊपर जो हिफाजती असूल हैं उनकी पाबंदी, उनकी पैरवी नहीं करते। किरण, व्हाट आर द रोड सेफ्टी रूल्स, ये सड़क के ऊपर जो हिफाजती असूल है ये क्या है। हमाद, while crossing the road we should always follow the signals, जब हम सड़क को पार कर रहे होते हैं तो हमें सिग्नल्स की पाबंदी करनी चाहिए। अब बेटा वो कैसे होता है, सबसे पहली बात आपने ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी है। दूसरी बात, जब ट्रैफिक का सिग्नल रेड होगा इसका मतलब ट्रैफिक रुक गई है, अब पैदल चलने वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं। और रोड क्रॉस करने के लिए क्या होता है, पहले आपने अपनी राइट साइड पे देखे, राइट साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा। उसके बाद अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, जब आप देखें कि दोनों साइड की ट्रैफिक आपसे डिस्टेंस पे है, दूर है और आप सेफली रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें। और बेटा कभी भी भाग कर रोड क्रॉस नहीं करनी, ओके, क्योंकि भागते हुए अगर खुदा न खास्ता आप रोड पे गिर जाते हैं तो इस दौरान हो सकता है सिग्नल खुल जाए और आपको उठने का मौका न मिले। इसलिए बेटा कभी भी रोड के ऊपर चलते हुए, बेशक आप फुटपाथ पे चल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, दौड़ना नहीं है, आराम से साइड पर चलना है, फुटपाथ के ऊपर चलना है। और रोड हमेशा ज़ीब्रा क्रॉसिंग से उस वक्त पार करनी है जब ट्रैफिक का सिग्नल रेड होगा। ओके, ऑल राइट जी, दोज आर सिग्नल्स। अब इस तरह के सिग्नल्स होते हैं रोड के ऊपर, बेटा आपने जरूर देखे होंगे। हमाद पॉइंटेड एट द ट्रैफिक सिग्नल, हमाद ने ट्रैफिक सिग्नल की तरफ इशारा करते हुए कहा एट द इंटरसेक्शन, जो कि चौराहे पर। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, जहां देखें एक रोड इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहां पर और यहां पर सिग्नल्स होते हैं रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इसको चौराहा कहते हैं। किरण, व्हाट डू सिग्नल मीन, ये जो इशारे हैं इनका मकसद क्या है। हमाद, रेड सिग्नल मीन्स टू स्टॉप, जो सुर्ख बत्ती है, जो रेड सिग्नल है, ये आपको कहता है रुक जाएं। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो रेड सिग्नल पर आपने रुकना है। किरण, आई नो व्हाट द रेड सिग्नल मीन्स, मुझे लाल बत्ती का मतलब पता है, इट मीन्स टू स्टॉप, इसका मतलब है रुक जाओ। व्हाट डज द येलो सिग्नल मीन, ये जो जर्द रंग का पीला सिग्नल है इसका क्या मतलब है। हमाद, येलो सिग्नल मीन्स, जर्द सिग्नल का पीले सिग्नल का मतलब है गेट रेडी टू गो, चलने के लिए तैयार हो जाइए। किरण, व्हाट डज ग्रीन सिग्नल मीन्स, जो हरी बत्ती है इसका क्या मतलब है। हमाद, ग्रीन सिग्नल मीन्स यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं, आपकी साइड की ट्रैफिक अब खुल गई है। आप अगर गाड़ी में बैठे हैं, बाइक पर हैं, वैन में हैं, किसी भी व्हीकल पर हैं, जब आपके सामने ये सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो आपने चल पड़ना है, राइट। किरण, व्हाट डज ज़ीब्रा क्रॉसिंग मीन, बेटा ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, ये रोड के अंदर ये जो ज़ीब्रा की तरह की स्ट्राइप्स बनी है इसका क्या मतलब है। हमाद, ज़ीब्रा क्रॉसिंग इज द स्पेस वी यूज टू क्रॉस द रोड, ज़ीब्रा क्रॉसिंग वो जगह है जहां से हम सड़क को पार करते हैं। किरण, हाउ कैन वी कंट्रोल द एक्सीडेंट्स, हम हादसात को हादसात पर कैसे काबू पा सकते हैं। हमाद, इफ वी फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स, अगर हम सड़क के हिफाजती असूलों की पाबंदी करेंगे, देयर विल बी लेस एक्सीडेंट्स, तो हादसात कम होंगे। किरण,
थैंक यू ब्रदर, भाईजान, भैया आपका शुक्रिया। हमाद, यू आर वेलकम। हमाद कहता है कि छोटी बहन यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज हाउ बेटा, जब देखिए कितना प्यारा लेसन है, जिससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उनका मुशाहिदा करना है, और वहाँ से भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हर जगह पर हमारे लिए सीखने की चीज़ें होती हैं, और बहुत सी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब हमें सिखाता है। देखिए कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 151 में, वी हैव सेंट अमंग यू अ मैसेंजर फ्रॉम योरसेल्व्स, हमने आपके दरमियान आप ही में से एक पैगंबर भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिसाइटिंग टू यू आवर वर्सेस, जो आपको हमारी आयात सुनाते हैं, एंड प्योरीफाइंग यू, और आपको प्योर करते हैं, आपको पाक करते हैं, एंड टीचिंग यू द बुक, और आपको किताब की तालीम देते हैं, एंड विजडम, और आपको हदायत हिकमत सिखाते हैं, एंड टीचिंग यू दैट विच यू डिड नॉट नो, और आपको वो सब कुछ सिखाते हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। तो बेटा सीखने का, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सीखने के यानी इल्म हासिल करने को कितनी इंपॉर्टेंस है कि हर चीज हमें सीखनी चाहिए। सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारा कुरान और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के लिए भेजा है। तो हमने जो अच्छी चीज़ें सीखते हैं उनको याद रखना है, उन पर अमल करना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो आज जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं आपने इनको याद रखना है, रोड पर जाते हुए इन सब बातों को जहन में रखकर इन पर अमल करना है। तो इस तरह इंशाल्लाह हम हाथ साथ से महफूज रहेंगे। So that's it for today. कल हम ग्रामर के लेक्चर से इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। Till that time, keep learning and take very good care of yourself. Thank you and Allah Hafiz.